Hello, children. Today we will study a poem titled Amanda. It is written by Robin Klein. Amanda is the name of a girl, and what she thinks and what her mother thinks both are contrary to each other. So, here is a poem. So, in the introduction, we can read every child feels that she is controlled by instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. Now, if we are in the class, we can do this practice means reading by the student. But as this is a recording video, I will tell you here some things here. So here are first stanza is spoken by the mother of Amanda, and the second stanza is spoken by the girl Amanda. Here, whatever is in bracket, it is spoken by, it is thought by the girl Amanda. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Here, the mother of Amanda instructed her don't not to chew the nails. Don't sit bending your shoulders. Stop sitting in a lazy way and sit straight, Amanda. These are the instructions passed by the mother to the girl Amanda. माँ अमांडा से कहती है कि तुम्हारे नाखूनों को चबाओ मत, अपने जो कंधे हैं उनको झुका करके मत बैठो. स्टॉप स्लाउचिंग यानी टू सिट इन ए लेजी वे, सुस्त तरीके से ना बैठो, सीधी तन के बैठो. ये अमांडा को उनकी मदर कहती है. अब जो अगली चीज़ जो पैरेंथेसिस में है यानी ब्रैकेट में है वो अमांडा सोचती है. देयर इज लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me and mermaid drifting blissfully. So Amanda thinks there is a relaxed emerald sea, green colored sea, relaxed sea, where the sole inhabitant is me. I want to be alone there and nobody else. I want no company there. I want to be alone there, drifting blissfully and moving slowly with happiness, with joy. Amanda कहती है कि मैं बिल्कुल एक ऐसे समुद्र के पास जाना चाहती हूँ जो हरे रंग का हो और रिलैक्स्ड हो, बिल्कुल जहाँ पे कोई तनाव न हो, जो जहाँ पे मैं खुद अकेली रहूँ. यानी एक मरमेड के रूप में, मरमेड कहते हैं जो आधी मछली और आधी लड़की के रूप में जो होते हैं वो मरमेड कहलाती है. बोले मैं वहाँ पे अकेली मरमेड हूँ उसी पर और वहाँ आराम से मूव करती रहूँ, जॉयफुली खुशी खुशी से मैं वहाँ पे मूव करती रहूँ. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Now, mother again passes 3 more orders. She asks her, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? Did you make your room clean, Amanda? I told you to clean your shoes, and she asked her to clean her shoes. अब अमांडा की माँ है, फिर वापस तीन चीज़ें उनसे पूछती है. क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है अमांडा? क्या तुमने अपने रूम की सफाई कर ली है अमांडा? क्या मैंने आपसे ऐसा नहीं कहा कि आपको अपने जूते साफ करने चाहिए? मैंने कहा था आपको ऐसा. नेक्स्ट स्टेंजा जो अमांडा सोचती है अब इसके जवाब में. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is
sweet. Amanda thinks here that she is an orphan. Orphan means without mother and father. Roaming the street, I am walking here and there in the street, and I make pattern on soft dust. Okay, and by my silent bare feet, and I make certain patterns on the soft dust. This and the silence is golden. Where the silence is golden and freedom is sweet. तो अमांडा कहती है वहाँ पे, और अमांडा सोचती है जब उनकी माँ तीन चीज़ें के बारे में उनसे पूछती है तो उसके जवाब में अमांडा ये सोचती है कि मैं तो एक अनाथ हूँ, बगैर माता पिता वाली बच्ची हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो गली में इधर से उधर घूम रही है, और जो धूल भरे सड़कें हैं उसके ऊपर पैटर्न पैरों से, अपने नंगे पैरों से वो उस पर पैटर्न बना रही है। और बाद में लास्ट में अमांडा कहती है कि साइलेंस तो बहुत स्वर्णिम होता है, चुप्पी बड़ी स्वर्णिम होती है, और स्वतंत्रता जो होती है वो बड़ी मीठी होती है। नेक्स्ट स्टैंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। Then again, mother says to Amanda, don't eat chocolate. And she further says that remember your acne, Amanda. Acne on they appear on faces. Will you please look at me when I am not speaking? Right? Means Amanda's mother says, whenever you talk to me, you look into my eyes, or look on my face, Amanda. अमांडा की माँ फिर से कहती है कि ये चॉकलेट मत खाओ, याद करो तुम्हारे मुहासे जो तुम्हारे चेहरे पर हो रहे हैं, और आप जो प्लीज, और फिर कहती है जब आप मुझसे बातें करती हो तो आपको मेरे मुंह की तरफ देखना चाहिए, यानी आपकी नज़रें झुकी नहीं होनी चाहिए, आपको मेरी तरफ देखना चाहिए। नाउ अमांडा थिंक्स फर्दर, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair. To understand this stanza, we must know a story about Rapunzel. Rapunzel was a girl with a long golden hair. अभी क्या होता है कि रूपंजेल जो एक लड़की है जिसको एक राक्षसी ने एक ऐसी टावर के ऊपर बंद करके रखा हुआ है जहाँ पे वो अकेली है और ऊपर रहती है, और उस टावर रूपंजेल, जैसे कि रूपंजेल के बाल गोल्डन और लंबे हैं, तो उन लंबे बालों से ऊपर टावर से लेकर नीचे तक उसके बाल फैले हुए, उन्हीं बालों से वो राक्षसी जो है वो नीचे से ऊपर चढ़ती है और ऊपर से वापस नीचे आती है। तो ये आगे अब कहती है, जो अमांडा कहती है, मैं एक रूपंजेल हूँ जो मेरी कोई भी केयर नहीं है और जिसको कोई भी चिंता नहीं है। लाइफ इन टावर इज़ ट्रैंक्विल, और भले उस टावर पे जो ज़िंदगी है वो बड़ी शांत है और रेयर अच्छी है, जो किसी को अन्य लोगों को नहीं मिलती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स, लेकिन मैं अपने बालों को कभी भी ऐसे खुला नहीं छोड़ूंगी ताकि कोई भी उनको पकड़ के ऊपर चढ़े और नीचे उतरे, लेकिन मैं ज़रूरी रूप से वहाँ पे उस टावर के रूप में रहना चाहूँगी क्योंकि वो रेयर जगह है और वहाँ शांति है। Last stanza. Stop that sulking. What at once, Amanda? You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Now, Amanda's mother says, don't be upset. Amanda, don't be upset. You are always so moody. You are moody. You are a moody girl. Okay. Anyone would think that I nagged, I scold you, Amanda. अभी अमांडा की मदर कहती है कि आप जो जिस तरीके से आपका मूड है, अपसेट है, आप अटवेज ऐसे अभी तुरंत आप अपने अपसेट मूड को ठीक करो, ये कहती है, अपसेट नहीं रहो। यू आर ऑलवेज मूडी, और तुम हमेशा मूडी रहती हो, अपने जो मनस्थिति जैसी बना लेती हो वैसी रहती हो, यानी खुश नहीं रहती हो, यू आर सैड, तो सैड न रहो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड यू, और जबकि दूसरा कोई भी यही देख करके सोचेगा कि मैंने तुम्हें स्कॉल्ड किया, नेग्ड किया मैंने स्कॉल्ड किया, डांटा है। तो ये पूरी कविता थी बच्चों, आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और फिर से इसको पढ़िएगा, और एक डिक्शनरी से और मीनिंग अगर नहीं आती तो वो देखिएगा और समझ लीजिएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर ताकि आप आसानी से कर पाएंगे।